ગઈ વખતે જે કહ્યું ને કે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં તાદાત્મ્ય આવશે, એટલે દ્વૈત અને અદ્વૈત બંનેની વાત આવે છે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં. તો એ મેં શોધ્યું પણ મને ક્યાંય ખ્યાલ નથી આવતો કે કઈ રીતે આવે છે. આપણે છેલ્લે કહેલું કયા પ્રવચનમાં. એટલે આપણે સ્વામી સેવક ભાવ જે કહીએ છીએ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં, ઠાકોરજી સેવ્ય છે, આપણે જીવ સેવક છે, બરાબર છે. તો સ્વામી અને સેવકનું દ્વૈત તો છે ને, બે જણ તો ખરા ને. એ દ્વૈત શેમાં પ્રગટ થયું છે? અદ્વૈતમાં. કેમ કે આપણે શું કહીએ છીએ? બ્રહ્મ સંબંધ કરનાર સર્વેશામ દેહ જીવયો. તો બ્રહ્મ સંબંધ કરવાથી બધું જ બ્રહ્મરૂપતા આવી જશે. સર્વેશામ બ્રહ્મતા તત એમ જે કહ્યું છે ને, બધી જગ્યાએ બ્રહ્મરૂપતા આવશે તો બ્રહ્મરૂપતાથી અદ્વૈત આવશે. એટલે બે નહીં રહે, એક જ બ્રહ્મ જ છે. અને એ અદ્વૈતમાં પછી લીલાર્થ દ્વૈત પ્રગટ થશે, જેને આપણે તાદાત્મ્ય કહીએ છીએ. તો આપણે જે સ્વામી અને સેવકનો જે દ્વૈત છે તે એવો દ્વૈત નથી કે જેમાં અદ્વૈત ન હોય. તો જેમ જે લોકો દ્વૈત મતવાળા જે છે, જેમ માધવ સંપ્રદાય વગેરે, એ લોકો દ્વૈત મત માને છે. તો એમાં સ્વામી સેવકમાં પણ ભેદ, એ ભેદ કાયમનો ભેદ છે, એ ક્યારેય અભેદ થઈ જ ન શકે. તો આપણે ત્યાં તો એ રીતે નથી ને. બ્રહ્મ જ જીવ બને છે, બ્રહ્મ જ જળ બને છે, બ્રહ્મ જ અંતર્યામી છે. તો જળ જીવ અંતર્યામીના જે ભેદ છે એ પણ બ્રહ્મમાંથી જ પ્રગટ થયા છે. એટલે એવું દ્વૈત નથી, લીલાર્થ દ્વૈત છે. એટલે ભગવત લીલા માટે જ આ દ્વૈત પ્રગટ થયા છે. આમ અદ્વૈત છે. એમ આપણે જયારે કૃષ્ણ હું તારો છું એમ જયારે આપણે કહીએ તો એમાં તારો અંશ છું, તારાથી અલગ નથી, ભિન્ન નથી, એ ભાવ તો આવશે જ ને. પછી કહીએ છીએ કે એટલે દાસોહમ, અને પછી દ્વૈત આવશે. દાસોહમમાં દ્વૈત આવશે કે સ્વામી અને દાસ એમ. હા, છૂટો પડ્યો છે એમાં બ્રહ્મમાંથી જ છૂટા પડ્યા છીએ, એમાં લઈ શકાય દ્વૈત. હા, હા, એટલે કૃષ્ણથી હું છૂટો પડ્યો છું. છૂટા પડ્યા પછી જે વિપ્રયોગ રૂપી જે વિપ્રયોગનો જે ક્લેશનો આનંદ છે એનો પણ અનુભવ નથી થઈ રહ્યો, એ બી તિરોભાવ થઈ ગયો છે. એમ જ કહે છે ને. હા, એટલે તિરોભાવ થઈ ગયો એટલે હું હવે પ્રભુના સ્વરૂપને જાણતો નથી, દ્વૈત થઈ ગયો ને. એકચ્યુઅલી જયારે જીવનો પ્રગટ થયા બ્રહ્મમાંથી ત્યારે જ દ્વૈત તો પ્રગટ થયા ને. કેમ કે એક બ્રહ્મ એક જીવ એમ બે દ્વૈત તો ત્યાં જ થઈ ગયા ને, છૂટા થયા ત્યારે લીલા માટે. તો દ્વૈત તો છે જ લીલામાં, પણ એ દ્વૈત એવો દ્વૈત નથી કે જેમાં અદ્વૈત ન હોય, બસ એટલી વાત છે. તો એ દ્વૈતને આપણે તાદાત્મ્ય કહીએ છીએ, જ્યાં અદ્વૈત ને છોડ્યા વગર જે દ્વૈત પ્રગટ થાય છે એનું નામ જ તાદાત્મ્ય છે. અને જેમાં જન્મ લે છે ને પુરુષો, તો એ આધ્યાત્મિક જન્મ છે પુરુષોનો કે બ્રાહ્મણનો. હા, તો એવી રીતે સ્ત્રીઓ માટે આધ્યાત્મિક જન્મ કયો લઈ શકાય? સ્ત્રીઓને તો સ્ત્રીઓ દ્વિજ નથી ને. દ્વિજ થાય જયારે વિવાહ સંસ્કાર થાય ત્યારે. વિવાહ સંસ્કાર થાય ત્યારે પતિએ સંસ્કાર જે ઉપનયન સંસ્કાર થયા હોય એટલે અમે લોકો જયારે બ્રહ્મચારી હોઈએ છીએ ને ત્યારે 3 દોરાની જનોઈ પહેરીએ છીએ. લગ્ન થયા પછી 6 દોરાની જનોઈ પહેરીએ છીએ. તો 3 બીજા જે આવ્યા ને તે આપણી પત્નીના, ધર્મપત્નીના એ 3 આવ્યા. એટલે હું જે બી કંઈ કરીશ ને એમાંથી અડધો ભાગ પત્નીને ઓટોમેટિક મળી જાય. તમે ન કરો તોય તમારે ખાલી તમારું સ્ત્રીધર્મ નિભાવવાનો. શાસ્ત્ર એ રીતે કહે છે, તમને ધર્મ કરવાની છૂટ નથી તો ક્યાંથી કરશો, પણ જે પતિ કરશે એનો અડધો ભાગ તમને મળી જશે ઓટોમેટિક એમ. કેમ કે જનોઈ પહેરીએ છીએ ને એમ.
તો એ દ્વિજ ત્યાં આવશે, ત્યારે થશે. વિવાહ સંસ્કાર થશે ને ત્યારે દ્વિજત્વ આવશે. યાદ યાદ. गए वक्त अपन ने 5वां अध्याय पूरा कर लियो. 5वें अध्याय में सुबलास्व और हरियस्व दोनों को नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दियो, जैसे उनको मोक्षानंद की प्राप्ति भई. तो ये दक्ष के जो पुत्र हैं उनपे प्रभु को अनुग्रह पुष्टि को निरूपण यहाँ किया है. और सात्विक तामस यहाँ पुष्टि है ज्ञान को निरूपण करके. चौथे अध्याय में दक्ष के ऊपर भगवान ने कृपा करी, वो तप को निरूपण किया दक्ष को. अब ये छठे अध्याय में दक्ष की जो पुत्री हैं, क्योंकि अब पुत्र तो सब मोक्ष के मार्ग पे चले गए, अब वंश कैसे चलेगा. तो फिर यहाँ छठे अध्याय में ये बात आई कि ब्रह्मा जी ने उनको अनुनय कियो, विनय कियो दक्ष प्रजापति को, और फिर उनके 60 कन्या प्रकट भई. और 60 कन्या के ऊपर भगवान को अनुग्रह है, भगवान ने कृपा करी है जगत को उद्धार करने के लिए. उद्धार कौन से अर्थ में कि भाई ये 60 कन्या के वंश सु पूरी सृष्टि भर जाएगी. तो देव दानव मानव जीव पशु पक्षी सब सृष्टि इनकी भई है 60 कन्या की. तो पूरा विश्व जो है वो इनकी संतान भई. ऐसी कृपा इनकी दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं हैं उन पे भई है. तो वाको ये नाम आगे आयो है पुष्टि प्ररोह हेतुश्च इति. पुष्टि मार्गीय या प्ररोह, प्ररोह को अर्थ कर रहे हैं सृष्टि. पुष्टि मार्ग की जो सृष्टि है तत्र हेतु, वहां में जो हेतु कौन बन रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी. स्वयं भगवान ही पुष्टि सृष्टि को प्रकट करने में कारण बन रहे हैं. तत प्राचेतस असकिन्याम अनुनीत स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहितृ पितृवत्सला. तो ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पे दक्षा प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न करी. ये श्लोक यहाँ दियो है टीकाकार ने. जाके बाद इत्यादि ना करके जितने भी आगे के श्लोक हैं वो यही सब बता रहे हैं कि वो 60 कन्याओं पूरा वंश परंपरा को यहाँ विवरण दियो है. पूरे छठे अध्याय में इन 60 कन्याओं को वंश को विवरण ही दियो गयो है. और ये जो वंश है वह में सब प्रकार की सृष्टि है. पुष्टि सृष्टि भी है, मर्यादा सृष्टि भी है और प्रवाह सृष्टि भी है. सभी सृष्टि यहाँ के अंदर आ गई, कोई वस्तु छूटी नहीं है यहाँ में. लेकिन यहाँ में जो पुष्टि मार्ग की सृष्टि है वो तो खास प्रभु ने अपने लिए प्रकट करी है. जैसे वृत्र आगे आएंगे ना, वो तो पुष्टि सृष्टि है. वाकई कारण स्वयं प्रभु है, क्योंकि पुष्टि सृष्टि के साथ तो स्वयं प्रभु लीला करेंगे. मर्यादा सृष्टि के साथ साक्षात स्वरूपात्मक लीला नहीं है, प्रभु की नाम सेवा कर रहे हैं. पुष्टि सृष्टि प्रभु की स्वरूप सेवा कर रहे हैं. प्रवाही सृष्टि तो प्रभु के साथ लीला करे ही नहीं है. तो यानी ये पुष्टि सृष्टि भगवत रूप सेवार्थम ये सृष्टि होने के कारण यहाँ में मुख्य कारण ठाकुर जी हैं. ये तो सभी कारण प्रभु ही हैं, लेकिन मुख्य कारण यहाँ पे प्रभु बन रहे हैं, क्योंकि प्रभु को संकल्प है कि एकोम बहुश्याम सद्वेधा पातयत पतिश्च पत्निश्च. तो प्रभु 2 रूप बने हैं, पति और पत्नी रूप से. वो क्यों? अपने संग क्रीड़ा करने के लिए कौन उनके साथ में रमण करेगा, तो स्वयं पुष्टि सृष्टि ही प्रभु के साथ रमण करेगी. यह अर्थ में इनको हेतु बता रहे हैं. अब ये यहाँ ये मूल में ये जो अध्याय आएंगे, अब
या के अंदर मुख्यतः विश्व रूप की जन्म को प्रकरण सब चले गए अध्याय में, क्योंकि विश्वरूप जो है उनके ऊपर प्रभु ने कृपा विशेष की है, क्योंकि ये पहले जो ये अध्याय आए 4, 5, 6 अध्याय, यहाँ में तप, ज्ञान और जगत को उद्धार 3 वस्तु बताई। तो दक्ष के ऊपर तो भगवान ने कृपा करके उनको तप, दक्ष प्रजापति को सिद्ध करवायो। दक्ष के जो पुत्र थे उनको ज्ञान सिद्ध करवायो भगवत कृपा सु, और दक्ष की जो पुत्री है उनके ऊपर उनको भगवत कृपा सु जगत उद्धार करने को सामर्थ्य प्रभु ने उनको दियो है। ये तीनों प्रकार के सामर्थ्य प्रभु को विश्व रूप में रखने हैं, या लिए विश्व रूप में प्रभु कृपा करना चाह रहे हैं। तो ये चौथे अध्याय से ही वाके बीज पहले से ही वहां आ गए थे, चौथे अध्याय से ही। तो ये सब बात जो है वो नारद जी को पता है, या लिए नारद जी ने प्रभु को अभिप्राय को जान के ही भगवत कार्य कियो। दास एक ज्ञात रद्गतः, दास ही एव एक ज्ञातम अभिप्राय यस्य कथम अन्यथा नारद उपदेशम कुर्यात भगवत अभिप्राय बिना इति। तो जो भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, उनके द्वारा ही भगवान को जो अभिप्राय है वो जानने में आ सके है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने के कारण प्रभु के मन की बात वो जान ले में है। यही लिए नारद जी ने प्रभु को अभिप्राय जान लियो, तो या लिए नारद जी ने दक्ष के पुत्र को ज्ञान को उपदेश दियो, अन्यथा उपदेश नहीं देते। प्रभु के अभिप्राय को जाने बिना प्रभु को क्या कार्य कराने की इच्छा है ये जाने बिना कोई भी अपन बीच में अपनी होशियारी नहीं छाट सके। लेकिन नारद जी भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की अंतःकरण की बात जाने हैं कि कौन सो व्यक्ति कौन से मार्ग को अधिकारी है, वह अनुसार आपको उपदेश देना चाहिए। तो ये ज्ञान मार्ग के मोक्ष के अधिकारी हते हरिवश स्वबलास्व, या लिए नारद जी ने उनको ज्ञान को उपदेश देके उनको मुक्ति को मार्ग उनको बता दियो। तो दासई को एक ज्ञात रद्गत, तो या को सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो जो पुष्टि सृष्टि प्रकट भई है हमें मुख्यतः भगवान ही कारण है वाके, और मर्यादा प्रवाह सृष्टि के भगवान कारण नहीं होके और परंपरा से दूसरे ठाकुर जी कारण बने, लेकिन परंपरा से बने, डायरेक्ट प्रभु कारण नहीं बने हैं। जैसे यहाँ पुष्टि प्रभा मर्यादा ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें हैं कि तीनों सृष्टि को प्रागट्य प्रभु के अलग अलग अंश भई है। मूलेच्छात फलम लोके वेदोक्तम वेदी के पीछ काय न तो फलम पुष्टौ भिन्न इच्छा तो अपि न एक था। तो मूल में फल की इच्छा है, मूल में इच्छा है प्रभु की लोक में फल देवे की, तो प्रवाही सृष्टि। और या लिए मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, मनसु आपने प्रवाह सृष्टि की रचना करी, इच्छा मात्र ने मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि ही। ये बात बताई मैंने, ये जीव अलग अलग कैसे प्रकट हुए हैं, बाकी प्रक्रिया पुष्टि प्रभा मर्यादा ग्रंथ में बताई है। वचसा वेद मार्गम ही, वाणी के द्वारा वेद मार्ग प्रकट करने के लिए ये मर्यादा सृष्टि प्रकट भई, क्योंकि मर्यादा सृष्टि नाम सेवा के लिए है। और पुष्टि कायन निश्चय, पुष्टि जो है सृष्टि वो कायासु, क्योंकि वो भगवान की स्वरूप सेवा के लिए है। या लिए प्रभु ने अपने कायासु पुष्टि सृष्टि प्रकट करी है, ऐसे विवरण आ रहे है। या कि टीका में देखो
क्या आज्ञा कर रहे हैं? मूलेच्छा तो यहाँ ये बात बताई ना, इच्छा मात्रेण मनसा प्रभाव सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्ग ही पुष्टिम कायन निश्चय। यहाँ बताया कि जो इच्छा मात्र सु मनसु भगवान ने प्रवाह सृष्टि करी। तो एकादश स्कंद में वर्णन आवे है कि जो वैकारिक अहंकार है, मतलब वह अहंकार सु मन प्रकट भयो। तीन सात्विक राजस्थान में 3 प्रकार के अहंकार बताए हैं, वो अपने तृतीय स्कंद में आयो। तो हमें सु जो सात्विक अहंकार में सु मन प्रकट हुए है, और वेद में मनसु सृष्टि भई है ये बताया। सो प्रवाही सृष्टि मनसु भई है, और ये सृष्टि जो है वो मूलेच्छात लोके फलम, लोक में जो फल है वाके लिए ये सृष्टि है। लोक में जो फल है लौकिक फल माटे आ सृष्टि है। तो प्रभु को डायरेक्टली वाको उपयोग नहीं है ना। लोक में जो फल है एना माटे जो सृष्टि थई होय, वाके लिए जो सृष्टि है, तो ठाकुर जी के साथ डायरेक्ट वाको वार्तालाप भी नहीं है, न प्रभु के साथ वाको कोई रोल है बड़ो। लेकिन मर्यादा सृष्टि है वो वचसा वेद मार्गम ही, वचन सु मर्यादा सृष्टि भई है। तो मांडुक्य की उपनिषद में ऐसे बात कही है कि ओमकार सु सबन की उत्पत्ति भई है। ओमकार सु, ओम भगवत नाम, तो ओमकार सु ये सब वस्तु भई है, प्रकट भई है। वासु जगत की उत्पत्ति लिखी है। प्रभु की वाणी वेद रूप है, वेद साक्षात नारायण को स्वरूप है। तो वेद में जो सृष्टि भई है वो मर्यादा सृष्टि है। या लिए जो मर्यादा सृष्टि है वो फल क्या वाको वेदोक्तम वैदिके पीछे, वेद में कहे हुए जो वैदिक फल है वाके लिए मर्यादा सृष्टि है। मतलब पारलौकिक स्वर्ग आदि मोक्ष वगैरह फल जो वेद में कहे हैं वाके लिए मर्यादा सृष्टि है। यानी मर्यादा सृष्टि की रुचि कहाँ होगी कि शास्त्र में जो साधन बताए होंगे वो साधन के अनुष्ठान में मर्यादा सृष्टि की रुचि होगी, और वही में फल में भी वाकई वही रुचि होगी। प्रवाही सृष्टि की रुचि कहाँ होगी? लौकिक साधन में, और लौकिक साधन से मिलते पाए लौकिक फल में प्रवाही सृष्टि की रुचि होगी। लेकिन जो पुष्टि सृष्टि है वो कह रहे हैं कि पुष्टिम कायन निश्चय, और कायन तो फलम पुष्टौ भिन्न इच्छा तो अभी नया कथा। जो उपनिषद में बताया कि भाई वही के स्वदेधा पातयत स एकाकी नरमते सुद्वितीय में इच्छत सद्वेधा पातयत पतिश्च पत्निश्च अभवत। तो एकाकी रमण हो नहीं सके, तो एकाकी जो रमण नहीं हो सके या लिए उन्होंने अपने आप को 2 भाग में विभाजित किया, पति और पत्नी के रूप में। और ये जो सृष्टि है वो आनंदात्मक सृष्टि है। ये कुछ सृष्टि कैसी है? आनंदात्मक सृष्टि है। तो ये पुष्टि सृष्टि है। काया से प्रकट भई वो भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्य था भाई, भगवान की रूप सेवा के लिए ये आनंदात्मक सृष्टि है। तो जो प्रवाही सृष्टि है वो जड़ात्मक सृष्टि है। क्यों जड़ात्मक? क्योंकि है तो जीव, भगवान को चिदंश है, लेकिन लोक में जो देह वगैरह प्रकट भय वाकई खुद को स्वरूप माने हैं, या लिए वो जड़ात्मक सृष्टि है। खुद को जैसे मानेंगे वैसे खुद हो गया ना। देह जड़ है और देह को ही अपना स्वरूप माने कि ये देह ही आत्मा है, प्रवाही सृष्टि से बेसिज है, वो आत्मा को माने ही नहीं है, वो देह को ही माने खाली। तो खुद भी जड़ जैसे ही हो गए। जबकि मर्यादा सृष्टि है वो चिदंश से ज्ञानात्मक है, वेद के ज्ञान के ऊपर आश्रित है। वेद में जो साधन फल बताए वहाँ पे निष्ठा है, बाकी यह चिदात्मक सृष्टि है।
और पुष्टि सृष्टि है वो आनंदात्मक सृष्टि है, क्योंकि वो भगवान के साथ रमण करिए प्रकट भई है। तो आनंदात्मक सृष्टि या तरसु ये 3 प्रकार की सृष्टि अपने शास्त्र में ही बताई गई है। तो अक्षर ब्रह्म में सु सृष्टि भई, ओंकार में सु वो सब मर्यादा सृष्टि है, जिनको फल मोक्ष बताया है। और भजनानंद और स्वरूपानंद को दान करने के लिए भगवान ने अपने स्वरूप में से जो सृष्टि प्रकट करी वो पुष्टि सृष्टि है। और वो कह रहे हैं कि वो पुष्टि सृष्टि, पुष्टि मार्ग की सृष्टि के हेतु प्रभु है। तो मर्यादा सृष्टि और प्रवाही सृष्टि के हेतु भी भगवान ही है, लेकिन साक्षात हेतु नहीं बन रहे हैं, परंपरा से बन रहे हैं। जबकि पुष्टि सृष्टि के तो साक्षात कारण भगवान है, इतना फर्क। यहाँ कहिए कि पुष्टि सृष्टि प्ररोह हेतुश्च, पुष्टि सृष्टि पुष्टि मार्गे જે સૃષ્ટિ છે એના કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે। वो भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप में से ही ये सृष्टि प्रकट करी है, अपने सेवा रूपी आनंद को दान करने के लिए। तो अगर पुष्टि सृष्टि है, पुष्टि जीव है, वो सेवा धर्म से वंचित है, तो वाकी जो उत्पत्ति भई है वो ही व्यर्थ हो जाएगी। जब यही महर्षि महापुरुष ने कही कि भगवान ये वही फलम, भगवान ही फल है उनको तो पुष्टि सृष्टि को, और भगवान की सेवा से जो वंचित रहे तो फिर ये सृष्टि पुष्टि सृष्टि प्रकट करने की जरूरत ही नहीं होती। तो भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही न अन्यथा भवेत, अन्यथा ये सृष्टि प्रकट करने की जरूरत ही नहीं હતી। क्यों प्रकट भाई? જે વસ્તુ જેના માટે પ્રગટ કરી હોય એના માટે જેને ઉપયોગ એનો ન કરીએ આપણે, તો એ વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવાનો મતલબ શું? जो तो प्रभु ने अपने साक्षात स्वरूप के साथ जो सृष्टि के रमण के लिए सृष्टि बनाई है, तो वही सृष्टि जो भगवान से ही दूर हो जाएगी तो ये सृष्टि को अर्थ नहीं है। यानी ठाकुर जी खुद ही पोषण करे हैं। पुष्टि कृपा या अर्थ में है कि ठाकुर जी ये सृष्टि को तो खुद ही पोषण करे हैं और कैसे भी करके वह जीव को अपनी सेवा में को अवकाश दे ही दे रहे हैं। तो ये मुख्य बात यहाँ कह रहे थे कि हेतु जो है वो भगवान है, भगवान की कृपा ही कारण है। पुष्टि मार्ग पे चलने के ऊपर भगवान की कृपा ही कारण है और कोई कारण नहीं है। भगवान को वर्ण ही हमें कारण है। तो ये मर्यादा सृष्टि और प्रवाही सृष्टि को उल्लेख यहाँ नाम में नहीं किया है। बहुत सारी सृष्टि प्रकट भई, पर यहाँ नाम बनायो पुष्टि प्ररोह हेतु से। क्यों? उत्तमता तो पुष्टि सृष्टि की है ना, तो उत्तम की बात कर दी नहीं, तो मध्यम और दूसरी हीन सृष्टि तो फिर समझ लो। मुख्य ની વાત આવી ગઈ એટલે પછી જે કોણ છે એની વાત તો આવી જ જાય ને। એટલે નામ પુષ્ટિ પ્રરોહ हेतु एक આવી ગયું, एक ही नाम आ गयो। फिर मर्यादा और प्रवाह को अलग नाम नहीं बनाया, जरूरत नहीं है। फिर मेन आ गया तो सब आ गया हमें। हाँ, प्रवाही को नाम बनाते तो पुष्टि को नहीं बनाते तो गड़बड़ होती। तो उत्तम नहीं बात तो आ गई, ये तो ना छूटवी जो है ना कम से कम, वो नाम वो बात यहाँ आ गई। तो ये जो दक्ष प्रजापति की 60 कन्या पे भगवान ने अनंत कृपा करी कि उनको ऐसी सामर्थ्य दी कि जगत को उद्धार कर सकें। क्योंकि जगत को उद्धार नहीं तो नहीं हो, तो क्योंकि यहाँ में सब देव प्रकट भय हैं, इनके वंश में सब देव प्रकट भय हैं, बड़े बड़े विभूति भक्त प्रकट भय हैं, तो इनके वंश में प्रकट भय हैं। तो इनके ऊपर तो कृपा है ही प्रभु की, तभी तो इतनो वंश प्रकट भय। तो कैसे प्रकट हो सके? भगवत कृपा बिना ऐसो सामर्थ्य कहाँ से आवे, ऐसे संतान प्रकट करे। तो ये कृपा ही है दक्ष की पुत्री के ऊपर। तो भगवान ने कृपा सबके ऊपर करी है, दक्ष के ऊपर भी करी, दक्ष के पुत्र पे भी करी और दक्ष की पुत्री पे भी कृपा करी है। क्योंकि ये तो बेसिकली कृपा दिखावे के लिए ये स्कंद है पूरा। तो कृपा की वैरायटी है, कैसी कैसी कृपा है। कोई कृपा तप को रूप ले रही है, कोई ज्ञान को रूप ले रही है, कोई जगत उद्धार को रूप ले रही है। ऐसे कृपा के भी अलग अलग शेड यहाँ में दिखाए जा रहे हैं। तो नारद जी वही कह रहे हैं कि प्रभु को जा तरी कृपा जा जी पे करनी होवे, वैसे प्रकार को वह जीव को उपदेश नारद जी देवे हैं।
और ये बात तो केवल जो भगवान के दास हैं वही जान सके हैं। दास के बिना भगवान की बात कोई नहीं जान सके है। जो अपने अभी वार्तान में जैसे महाप्रभु जी के मन में क्या है तो कृष्णदास मेघन जान गए, और श्री गोसाई जी के मन में क्या है वो रूपचंद नंदा जान गए। तो अपने अभी तो वार्ता आवे कि ठाकुर जी के हृदय में कौन सी बात करनी है उनके भक्त तुरंत जान जावे हैं, क्योंकि पुष्ट्या विविश्रा सर्वज्ञा। जो पुष्टि सुमिश्र हैं वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब क्या है कि उनको प्रभु को स्वरूप को ज्ञान है, प्रभु की इच्छा को ज्ञान है, प्रभु की लीला परिकर को ज्ञान है, कौन से समय कौन से लीला प्रभु की करनी है वो सब बात तो पहले से जाने हैं। वह तरह से वो प्रभु की सेवा में आगे से आगे रहे हैं। ऐसे सेवक ये उत्तम दास सेवक के लक्षण हैं। तो दासी की ज्ञाता रदगतः। और दूसरे सेवक हैं जो प्रभु केवे इतना करें, नहीं कहे हो तो खबर જ नहीं, તમે કીધેલું નહીં તો કેવી રીતે કરું है ना, કેવું જોઈએ ને, અમને કેવી રીતે ખબર પડે। तो ये ऐसे भी सेवक हो सके। तो કીધેલું નહીં તો કેવી રીતે કરું, तो कहो तब वो करे। और तीसरे सेवक ऐसे होंगे पर केवे तो भी नहीं माने, तो कही तो दीधું तो क्या સાંભળ્યું નહોતું लो, એવા સેવક પણ હોય છે। तो सेवक की 3 वैरायटी है, उत्तम मध्यम और हीन। तो पुष्टि सृष्टि है वो उत्तम सेवक है। दासी को ज्ञात रदगत, भगवान की आज्ञा को वो जान जावे हैं। तो प्रेम है ना, प्रेम सु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम स्नेह एवी वस्तु है कि एक बीजाना मन ने આપણે જાણી જઈએ, અને પ્રેમ ન હોય તો પછી એમ જ કહીશું ખબર તમે કો તારે ખાણી એમને થોડી ખબર પડે, या तारे की एटीट्यूड हो। तो ये बात यहाँ 6ठे अध्याय में वही बात कर रहे हैं। आगे के नाम भी सब वहीं के नाम है। शांति करता, जैसे शांति कराने वाले। शांति क्या कराई ठाकुर जी ने यहाँ कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को शांत करे। बहुत गुस्सा हो गया दक्ष प्रजापति कि दोनों पुत्रन को हरियस सबलास्व 10,000 पुत्र, फिर 1,000 पुत्र, 11,000 पुत्रन को उनने अपनी धर्म से अलग हटा के और मोक्ष धर्म में प्रवृत्त कर दिए। कोई भी आदमी गुस्सा आएगा, कोई भी व्यक्ति गुस्सा થશે ને કે આપણા જવાન જેવા છોકરાઓને આપણે સાધુ બનાવી દઈએ તો આપણને ગુસ્સો આવશે કે નહીં, આ શું કરો છો તમે, તો સાધુ જ બનાવી દીધા ને એ લોકોને। तो यही दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गए। नारद नहीं ब्रह्मा जी ने उनको शांत करे हैं। तो दक्षस्य शांते है, दक्ष की शांति कराने वाले। शांति को मतलब कर रहे हैं अनुनयस्य, उनको विनय पूर्वक समझायो भाई नहीं क्रोध मत करो, प्रभु की इच्छा सब होवे है, चिंता मत करो, और भी कुछ अच्छो होएगो, जो करके उनको अनुनय करायो, समझायो उनको ब्रह्म वाक्य ना। ब्रह्मा जी ने उनको बहुत समझाए, तब जाके उनको मन फिर तैयार भयो कि नहीं अब वापिस मेरे धर्म पुरुषार्थ में लगो। तो शांति करता भी भगवान है और अशांति भी करा दी नारद जी के द्वारा, वो भी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी सबके हित में ही कार्य करे हैं, जापे जापे जैसी पुष्टि करनी वैसी करे हैं। तो शांति करता भी प्रभु हैं। तो अपने को भी ठाकुर जी कोई न कोई ऐसो खेल रचे हैं अपने जीवन में, अशांति हो जाए फिर कोई को शांति करवे भी भेज देवे। ऐसे प्रभु सब कार्य करते रहे, इसलिए अपन को तो प्रभु की लीला को देखते रहने भैया, तो लीला है प्रभु की चलती रहे, ज्यादा हमें मन पे भार नहीं रखना। तो शांति करता श्री कृष्ण। वाक्य बाद कह रहे हैं कि सुहित कृत धर्मादीनां भार्यादि प्रदत्वेन सुहितम करोति इति तथा सम्यक हितम इति। अच्छी तरह से हित करे, कल्याण करे वाले। यहाँ ठाकुर जी तो सबको कल्याण ही करे हैं, पर ये प्रकृत संदर्भ जो उत्पन्न चल रहा है, यहाँ में क्या बात आई है कि प्रभु ने कल्याण सबको कियो कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्या उत्पन्न भई। 60 कन्या को दक्ष प्रजापति ने अलग अलग उनको वर ढूंढ दिए। जैसे हमें भागवत में आया है कि 10 कन्या थी, 10 कन्या को उन्हें धर्म से विवाह कियो, फिर 13 कन्या को कश्यप से विवाह कियो, 27 जो कन्या थी वो नक्षत्र हैं चंद्रमा से विवाह कियो, और 2 कन्याओं को भूत से विवाह कियो। भूत मतलब भूत प्रेत नहीं हो, नाम से भूत। और
दो कन्याओं को अंगिरा ऋषि से विवाह कियो और दो को कृशाश्व और चार जो होती उनको ताक्ष्य नामधारी कश्यप दूसरे हैं उनको विवाह कियो। 60 कन्याओं को विवाह उनने कर दियो तो वो कह रहे हैं कि सुहितकृत धर्मादि नाम भार्यादि प्रदत्वेन सुहितम करोति। धर्मादीन को मतलब आदि में कौन कौन आएंगे? धर्म, कश्यप, चंद्रमा, भूत, अंगिरा, कृशाश्व और दूसरे कश्यप, ये सब आदि में आएंगे। इन सब मन को उन्होंने 10, 13, 27, 2 और 4 ऐसे 60 कन्या उनको सबको ब्याह कर दियो। तो भार्यादि प्रदत्वेन भार्यादि को रूप से उनको दान करने के कारण सुहितम करोति सबको कल्याण कियो। क्योंकि ये तो प्रजापति थे सब, प्रजापति को कल्याण कैसे होवे? प्रजा उत्पन्न करेंगे तभी तो प्रजापति को कल्याण होगा ना। तो प्रजापति इनको ये कन्या मिली दक्ष की, तब तो वो अब तो प्रजापतित्व निभा पाएंगे, नहीं तो कैसे निभा पाएंगे? तो उनको कल्याण प्रजापति रूप से कल्याण कैसे भयो कि ये दक्ष की कन्या उनको ब्याह में मिली। या तरह से भगवान जो है वो पूरी सृष्टि को कल्याण करे हैं। हर व्यक्ति को जो भी कुछ मिल रहे हो है वो भगवान की इच्छा से ही मिल रहे है। वाके अधिकार अनुसार, वाकी योग्यता अनुसार हर वस्तु सबको मिल रही है, सबको कल्याण ही है। प्रभु कोई को कल्याण नहीं करे है। यो सुहितकृत सबको हित करे वाले। तो एक भक्त को तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अभक्त तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो भक्त हैं उनको तो पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि अच्छी रीसु हित प्रभु सबको करे हैं, कोई को अहित प्रभु नहीं करे हैं। क्योंकि भगवान जो है अहित और हित ऐसे दो कार्य कौन करे कि जाको पक्षपात होवे, जाको यूं होवे कि ये मेरो है ये मेरो नहीं है, ऐसा जाको भेद दृष्टि होवे जो व्यक्ति को, वो कोई को हित करे कोई को अहित करे। भाई मारू छे एનું हित करो, जे मारू નથી એનું અહિત કરો। या तरीके भेद दृष्टि होवे। ठाकुर जी कह रहे समोम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽसि न प्रिय। मेरे लिए तो सभी प्राणी मात्र समान है, तो मैं कौन सु द्वेष करूं कौन सु राग करूं, सभी मेरे हैं, सबके लिए कल्याण ही कर रहे हूं मैं। तो भगवान तो अपने स्वरूप में ही खेल रहे हैं। आत्मरमण प्रभु को है, आत्मरमण कर रहे हैं तो प्रभु के लिए तो ऐसा भेद दृष्टि है ही नहीं। जो अपने लिए है वो भेद दृष्टि है कि आ खराब मानस है, हमारो शत्रु है, हमारो मित्र है, ये अपनी दृष्टि में ऐसा है। प्रभु की दृष्टि में तो न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, सब प्रभु को ही स्वरूप है। या लिए प्रभु कोई की भी लिए अकल्याण नहीं कर रहे हैं, प्रभु तो कल्याण ही कर रहे हैं। सुहित यही प्रभु को वास्तव में स्वरूप है। या लिए भक्त को तो यही समझना चाहिए कि अपने जीवन में जो भी कुछ घटना भई है वो भगवान ने अपनी इच्छा से ही करी है, और वो प्रभु जो कर रहे हैं वो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जो प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं प्रभु तो अच्छा ही कर रहे हैं। अपन ऑब्जेक्शन लेने वाले कौन? अपन ऑब्जेक्शन कौन लेने वाले? या तरह से अपन को दृष्टि रखनी चाहिए सुहितकृत में, तो शांति भी करा देंगे अशांति भी करा देंगे। प्रभु सब कुछ कर सके हैं, उनकी सृष्टि है, उनकी सृष्टि में वो सब कुछ कर सके हैं। ऐसो अपन को प्रभु के ऊपर भाव दृढ़ रखना जरूरी है। या को नामी दृढ़ आश्रय है। अगर ये भाव नहीं है तो अपनो आश्रय प्रभु में दृढ़ नहीं है अभी, तो ये भाव तो सतत रहना चाहिए ना। तो शांति करता सुहितकृत और स्त्री प्रसूहु, और स्त्री प्रसू मतलब स्त्री एवं प्रसूतवान। तो दक्ष प्रजापति को फिर 60 कन्या उत्पन्न भई। तो 60 कन्या उत्पन्न करने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि उनको ये 60 कन्या उत्पन्न करने में प्रभु की पुष्टि काम कर रही है। भगवान ने इन 60 कन्याओं के ऊपर कृपा करनी है, जगत उद्धार करने की सामर्थ्य इनको प्रदान करी है। या लिए प्रभु ने ही इनको उत्पन्न किए हैं। ये स्त्री को उत्पन्न करने वाले भी भगवान कृष्ण ही हैं। ये कह रहे हैं स्त्री प्रसू, क्योंकि अब सृष्टि की रचना या तरह से प्रभु करने की इच्छा है, इनको निमित्त बनाए हैं। या तरह से इनको निमित्त बना के पूरी सृष्टि को सर्जन करना है, तो प्रभु ही तो उत्पन्न करेंगे, कौन उत्पन्न करेगा। और इनमें ये भी सामर्थ्य है कि देखो पुष्टि सृष्टि प्रकट हो रही है इनके वंश में, तो ठाकुर जी को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा साक्षात रूप से पुष्टि सृष्टि को उत्पन्न करना है। तो स्त्री प्रसू और स्त्री को उत्पन्न कर रहे भगवान है। और सर्व कामध्रुक
तावती भी एव सर्वेषां कामान विषय भोगान दुग्धवान इति अर्थः। उतने के द्वारा ही सबन की कामना को दोहन पूर्ति करे वाले भगवान सर्व काम दो सबन की इच्छाएं विषय भोग की काम वकुत धूके दुग्धवान दोहयो। तो प्रभु ने वो सब काम सबके पूरे किए हैं। मतलब ये जो दक्ष प्रजापति ने दूसरे प्रजापति को धर्म वगैरह जो प्रजापति हैं उनको अपनी कन्या ब्याह के, तो वो कन्या ने उन सबकी इच्छा पूरी करी है। कन्या ने सबकी इच्छा पूरी करी है, क्योंकि ये सृष्टि सृजन में जैसी जैसी संतान की जरूरत थी ऐसी सब प्रकार की सृष्टि उत्पन्न भई, यानी ये इनने इच्छा पूरी करवाई है सबकी। तो ये इच्छा पूरी करने वाले भी कृष्ण है। कृष्ण ने ही इनको ऐसा सामर्थ्य दियो इन कन्यान को कि जा सामर्थ्य सु सबकी इच्छा वो पूरी कर पाए। तो इनमें ऐसा सामर्थ्य कहाँ से आयो? तो भगवान की कृपा से ही ऐसा सामर्थ्य आयो। मतलब इन दक्ष की पुत्री में सामर्थ्य प्रभु की कृपा से आयो कि वो उन पुत्री ने सबकी इच्छाएं पूरी करी, नहीं तो ऐसा सामर्थ्य नहीं आता। तो या तरह से कह रहे हैं कि ये सब प्रभु ही कर रहे हैं। तो ये यहाँ पूरी वंशावली गिनाई है। छठो अध्याय पढ़े हो तो आपने पूरी वंशावली सब गिनाई है, कितने कितने उनके पुत्र हैं वगैरह वगैरह। तो वो सब वंशावली गिना के क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसी सृष्टि प्रभु को उत्पन्न करनी है थी वह तरह की इच्छाएं प्रभु ने ही पूर्ति करी है इनको ये सामर्थ्य देके, इन कन्यान को मूल में वो गिनाना है। और हमें पुष्टि वंश प्रणेता, अब यहाँ पुष्टि वंश अलग है। पुष्टिया अनुग्रह मात्रे एवं यह कृत यह वंश तस्य प्रकर्षेण नेता विस्तारक। अनुग्रह से ही जो वंश को विस्तार करे वाले भगवान श्री कृष्ण, ये पुष्टि भक्ति मार्गीय अनुग्रह की बात नहीं हो रही है, सामान्य अनुग्रह कृपा। वो कृपा ठाकुर जी सभी जीव पे कर रहे हैं, मर्यादा जीव पुष्टि जीव सब पे ही। वो कृपा बिना कुछ काम चले ही नहीं, सामान्य अनुग्रह वो तो है। तो भगवान ने अपने अनुग्रह मात्र से ही ये इतना विस्तार भयो सृष्टि को। इतना सृष्टि को विस्तार नहीं तो प्रभु के अनुग्रह बिना नहीं हो सके। पूरे 3 लोग भर जाने सृष्टि से, ये भगवान की कृपा बिना पॉसिबल है? शक्य है? नहीं है शक्य। तो तीनों लोग भर गए इनके वंशंसु, तो ये भगवान के अनुग्रह से ही इतना विस्तार भयो है, बाकी इतना विस्तार नहीं हो सके है। तो क्योंकि ठाकुर जी को जगत बनाना है, जगत क्रीड़ा करनी है, ठाकुर जी वहाँ मुख्य उनको अनुग्रह काम कर रहे हैं। तो पूरे 6 अध्याय में यही बात आई है पुष्टि वंश प्रणेता में, कैसे विस्तार भयो पूरे वंश को। वहाँ फिर बताइए 6ठे अध्याय के अंत में ये बात बताई है कि त्वष्टा आते अदिति के पुत्र 12 पुत्र हैं। तो त्वष्टा 12 में से एक आदित्य हैं। उनकी जो पत्नी थी वो दैत्य की छोटी बहन रचना थी। त्वष्टा એટલે અદિતિ અને કશ્યપના દીકરા। अदिति की वंश परंपरा में ये आदित्य भय 12 हमें नाम दिए हैं। विवस्वान, अरेमा, पुषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन भगवान भी वही में प्रकट है। देखो बड़े अवतार भी प्रकट हुए हैं सब। तो ये तो भगवान कृपा बिना तो ये इतना कार्य हो ही नहीं सके ना। तो ये हमें तो त्वष्टा है वो 12 आदित्य में से एक आदित्य हैं। वो त्वष्टा को ब्याह भयो तो दानव असुरन की छोटी बहन रचना सु, और वह रचना के गर्भ से 2 पुत्र भय, सन्निवेश और विश्वरूप। हमें विश्वरूप बड़े पराक्रमी थे। तो वो विश्वरूप जो हैं वो पराक्रमी थे क्योंकि उनको वो वैष्णव थे, वैष्णव विद्या जानते थे, और उनके अंदर प्रभु ने सब प्रकार को सामर्थ्य रखे तो। मतलब दक्ष प्रजापति ऐसो तब भी उनमें हतो,
હરિયસ્વ સબલાસ્વ જ્ઞાન भी उनमें હતો और ये दक्ष पुत्री को जो सामर्थ्य था जगत उद्धार को, ये सामर्थ्य भी विश्व रूप में હતો. तो तीनों प्रकार को सामर्थ्य उनमें सूक्ष्म रूप से विराज रहे हो. तो यानी ये महाप्रभु जी भागवत प्रकरण में कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सामर्थ्य उनमें હતો विश्व रूप में. दक्ष प्रजापति में, हरियस्थ सबलास्व में और दक्ष पुत्र में आधिभौतिक जो बात थी वो बात यहाँ आध्यात्मिक थी. तो आधिभौतिक और आध्यात्मिक अंतर क्या है? यहाँ स्थूल रूप से अपन को दिखाई दे रही थी ये सामर्थ्य. तप को सामर्थ्य अपन को दक्ष प्रजापति में दिखियो, ज्ञान को सामर्थ्य हरियास सबलास्व में दिखियो, जगत उद्धार को सामर्थ्य अपन को दक्ष की पुत्री में दिखियो, इतना बड़ा वंश प्रकट कर दियो. लेकिन ये तीनों सामर्थ्य विश्व रूप में छुपे हुए थे, सूक्ष्म रूप से, यानी वो आध्यात्मिकता वहां प्रकट होती. तो याल ये कह रहे हैं कि विश्व रूप जो है, बाकी पे भगवान ने विश्व रूप पे भगवान ने कृपा करने के लिए ही उनको ये तीनों प्राप्त करवायो. दक्ष और हरेश्व और दक्ष की पुत्री के पास जो सामर्थ्य प्रभाव होते वो तीनों विश्व रूप को प्राप्त भय. विश्व रूप भी भगवान की वैसी कृपा है, यूँ कह रहे हैं. तो यहाँ भी कृपा को ही वर्णन चल रहे है. यार ये नाम भी ऐसे आयो है कि विश्व रूपस्य, विश्व रूप इष्ट देवता. विश्व रूपस्य, विश्व रूप कौन है? त्वाष्ट्रस्य, त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र उनके पिता का नाम है. नहीं, त्वष्टा उनके पिता का नाम है. त्वष्टा के पुत्र त्वाष्ट्र. तो विश्वरूप जो है वो त्वाष्ट्र है, मतलब त्वष्टा के पुत्र हैं. और इष्ट फलदात्री देवता, उनको जो इष्ट है, इष्ट को फल के देने वाले जो देवता हैं वो कौन है? नारायण रूप. नारायण उनके इष्ट देवता हैं. तो विश्व रूप के इष्ट देवता नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण, वही उनके इष्ट देवता हैं. ये वैष्णव है, विश्वरूप वैष्णव है, वैष्णव विद्या के जानकार है. इनमें सब प्रकार को सामर्थ्य प्रभु ने रखे हुए, यानी विशेष कृपा भगवान की इन पे है. तो ये विश्व रूप पे कृपा करने के लिए कैसो राउंड राउंड सब कथाएं भई हैं, वो देखवे लायक है. कृपा करनी है विश्व रूप पे, तो बाकी लिए बधाने फराव्या केवा छे भगवाने, वो देखे की बात है. कि 7वें अध्याय में देखो कथा कैसी आई है कि इंद्र को बैठे बिठाए घमंड हो गया. स्वर्ग के राजा इंद्र को बैठे बैठाए घमंड हो गया. घमंड के कारण उनको धर्म को, सदाचार को भी ज्ञान नहीं रहे. और घमंड ऐसी वस्तु है, माना ऐश्वर्य को घमंड है, ज्ञान को घमंड है, पैसा को घमंड है, सब वस्तु घमंड हो सके आदमी के. क्योंकि आजू बाजू को वातावरण ही अपनो ऐसो होवे ने कि घमंड हो बिना रेवे ही नहीं. तो इंद्र को वातावरण में दिखाया हुआ कैसो है कि सभा में बैठे पए ऊंचे सिंहासन पे, और उनकी सेवा में कौन कौन उपस्थित है? तो मरुदगण 49. मरुदगण मतलब बहुत बड़ी बात है. 8 वसु देव हैं ये सब, 33 कोटि देवता हैं ये सब. 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण, अश्विनी कुमार, सब हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं. तो बड़े बड़े देवता हैं, उनके सामने हाथ जोड़ खड़े रहेंगे, वो सिंहासन में बैठे हुए हैं. तो आदमी को अभिमान नहीं आता हो तो आ जावे. आज मानस નું વાતાવરણ જ એવું હોય કે માણસને અભિમાન ન આવતો થઈ જાય, तो घमंड हो जावे हमें, बस स्वाभाविक बात है. कोई वैसे इंद्र की पोस्ट मिलनी बहुत मुश्किल है. हो कितने वर्ष तपस्या करें तब जाके इंद्र की वो पोस्ट मिले, सबको तो मिल ही नहीं सके. यालिए जो इंद्र भरे हुए वहाँ में तो हर प्रकार के गुण होंगे ही. वो इतनी जल्दी कोई दंबादी दुर्गुण से वो लिप्त नहीं हो सके. पूरो संयम होएगो, सब होएगो. बाकी बावजूद भी વાબકત હોય કોઈ તપસ્યા કરી હોगी તબ આજુબાજુનું વાતાવરણ છે ને તે આપણને
गड़बड़ कर ही दे, गड़बड़ हो ही जाए आदमी। तो यार ये वो वातावरण के कारण और सब जने उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कीर्ति व गान कर रहे हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं उनके, तो इंद्र को गर्व हो गयो, मेरे जैसो बड़ो कोई नहीं। અને ઇન્દ્રને ગર્વ થાય છે જો ઠાકોરજી જે ગોવર્ધન યાગ ભંગ કર્યો, गोवर्धन याग जैसे ते इंद्र भंग करावा माटे व्रज में दुख दियो सबको, तो भी घमंड के कारण के दियो के नहीं। तो ये पोस्ट ही ऐसी है, अमुक पोस्ट ज एवी है कि घमंड थाय ज। एम आपणे श्रीनाथजीનું મંદિરમાં કૃષ્ણ અધિકારીને બી અહંકાર આવી ગયો ને, ભલે લીલાનો ભાવ પાછળ હતો, પણ એ જગ્યા એવી છે કે અભિમાન આવ્યા વગર નથી રહેતું કે ભાઈ હું બધું વહીવટ સંભાળું છું, એટલે થોડોક તો ગર્વ આવી જ જાય। તમે લોકો થોડી હું કરી શકો છો। મંદિરની વાત ઘરમાં પણ થઈ જાય છે ને, ઘરમાં આપણે 4 સેવા વધારે કરીએ તો अपन को ये हो जाए कि तो हूँ आटली सेवा, તમે લોકો તમે તો બહાર રખડ્યા કરો છો, હું કેટલી સેવા કરું છું। ઘરમાં એ ઘમંડ થઈ જાય છે માણસ, तो घमंड तो कहाँ कब आ जाए आदमी को पता ही नहीं चले। तो ये घमंड जो है वो पुष्टि मार्ग में सु अपन को नीचे गिरावे को है जरिया है। असु कभी भी अहंकार नहीं करना, अहंकार संत्याज्य स्वामी अधीनत्व भावना महाप्रभु जाग्ञा करें। तो ये अब ये इंद्र को घमंड भयो, इंद्र के गुरु बृहस्पति जी आए सभा में, तो सबने नमस्कार करे, पर इंद्र ने कोई उनको मान सम्मान कुछ नहीं दिया, बैठो रहो चुपचाप। वहां से बृहस्पति जी चले गए। पीछे इंद्र को अपनी भूल को पश्चाताप है, ये तो मैंने बहुत अच्छी बात नहीं करी कि मेरे गुरु आए उनको मैंने अपमान अनादर कर दियो, और फिर उनको बड़े बड़े सब नीति की बातें धर्म की बातें याद आई। तो ऐसे इंद्र तुरंत सोच रहे थे कि मैं उनकी माफी मांग आऊं, क्षमा मांगा हूं। ये बात बृहस्पति जी को पता चल गई, तो बृहस्पति जी उनके स्थान से अंतर्धान हो गए। तो ये सब बात क्यों हो रही है? क्योंकि विश्वरूप को की एंट्री लानी है। याली विश्वरूप की जगह खाली पड़ी है ना, एनी जगह बृहस्पति की जगह विश्वरूप ने लावा है। याली ये इंद्र को घमंड भयो, बृहस्पति जी तो जानकार थे, सर्वज्ञ थे, उनको भी प्रभु की इच्छा मालूम होगी। याली ये इंद्र क्षमा मांगे आवे वासु पहले ही बृहस्पति जी वासु अंतर्धान हो गए। ये तो बहुत बढ़िया मौका है शत्रु पक्ष के लिए कि अब देव के पास उनके गुरु जो होते, गुरु को जब प्रभाव हो तो वो तो हट गयो, अब देवताएं जो निर्बल हो गए, सब तेज मीरा के हो गए, सब शत्रु ने अटैक, दानवों ने अटैक कर दियो देवता के ऊपर। अटैक करते ही सब देवता यहाँ से यहाँ भाग गए बेचारे, क्या करें, सब ब्रह्मा जी के शरण में गए, आप ही हमारो हमें से उद्धार कर सको, अब तो हमारो कोई रास्ता दूसरा दिख नहीं रहा है। ब्रह्मा जी को बहुत दुख भयो कि देखो ये देव जो हैं पूरी सृष्टि को संचालन करने की जवाबदारी इन पे है, यही ऐसे आज हो जाएंगे तो सृष्टि को क्या होएगा? क्योंकि असुरन को तो भी तो सृष्टि की पड़ी नहीं है। देवतान को पक्षपात क्यों प्रभु इतना कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर जवाबदारी है, सृष्टि संचालन को सब उनको ऊपर सौंपी ये बात, ये आपकी जवाबदारी आपको निभाना है। तो ब्रह्मा जी को भी चिंता भाई कि ये तो ठीक बात नहीं है, 33 कोटि देव बेचारे ऐसे दर दर भटकेंगे तो अपन मनुष्य तो कहाँ जाएंगे फिर? जेना भरोसे બધું ચાલે છે એ જ ભટકી રહ્યા છે તો પછી મનુષ્યનું શું થશે? तो कि तुम लोग ने बहुत ये अच्छा काम नहीं किया कि अपने गुरुदेव को तुमने अपमान किया है, और शुक्राचार्य उनके बहुत प्रबल गुरु हैं असुरन के। देखो उन्होंने शुक्राचार्य की कितनी सेवा की, तो आज कितने वो बलशाली हो गए हैं। तो अब देखो अब ये तो उन्होंने अब तुम एक ही काम कर सको कि त्वष्टा के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनके पास तुम जाओ, उनकी तुम सेवा करो। वो सच्चे तपस्वी संयमी ब्राह्मण हैं, और वो यदि उनको तुम गुरु बनाओ उनको, पर एक बात ध्यान रखो कि वो असुर को कभी पक्षपात लेवे तो तुम वो सहन कर लीजिए। ये बात उन्हें दी थी, ब्रह्मा जी ने कह दी थी पहले, पर उन्होंने ठीक है, उन्हें हाँ हाँ करी सर, हाँ बस आप कैसे
ભાઈ અભી તો ગરજ છે તો જે કેવું માનવું જ પડશે. ગરજે તો બધા ગધેડાને આપણે બાપ કહેવો પડે એવું છે. હમણાં ગરજ છે वर्मा जी की सब बातों ने मानी. हम तो वाकू विश्वरूप को गुरु बना लेंगे, विश्वरूप कुछ भी करेगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, भले वो असुरों को पक्ष भी ले ले तो भी कुछ नहीं कहेंगे, अभी तो हमारा कल्याण हो जाए. फिर देवताएं सब विश्वरूप के पास गए, खूब वो क्यों प्रशंसा करी, अरे तुम तो बहुत તમારી बहुत काबिल योग्य संतान, બહુ ડાયો છો તમે, તો બહુ ડાયા છો, योग्य संतान છો, अपने गुरुजन वडीलन को तुम आदर करो. ये तो वडील है इनके देव, तो बस अब हमारो तुम्हारे तपोबल शू, हमारे गुरु बन जाओ और हम हमारो रक्षा करो. भले ही तुम छोटे हो तो क्या भयो, एक्चुअली छोटो बड़ो ज्ञान शू होना चाहिए, केवल उम्र से छोटो बड़ो नहीं हो, ज्ञान बल बड़ो बल है. बाकी वार तो बधाना धोड़ा थवाना है ने, आज नहीं तो काले, ये कई बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी है. पर कलयुग में ऐसे कहवे कि बड़ो कौन, जाकी उम्र ज़्यादा हो बड़ो. लेकिन कलयुग के पहले के युग में ऐसे होता कि जो ज्ञान ज़्यादा हो ना वाको बड़ो मानते. तो उन्हें कही कि आप तुम्हारे में ज्ञान ज़्यादा है तो हम तुम्हारे में पैर भी छुएंगे तो हमें कोई दोष नहीं है. ये बात सब सुनी विश्वरूप ने. विश्वरूप तो बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे. उन्होंने कही कि ये आप जो पुरोहित काम को सौंप रहे हो, ये एक्चुअली ब्राह्मण तेज को नष्ट करने वाली बात है. क्यों? क्योंकि यासु सात्विक वृत्ति कम हो है आदमी की, क्योंकि यासु अपेक्षाएं बढ़ जाए. भाई मारा यजमान, आ यजमान ने हूँ आटलू कर्म कराऊँ, इतनो अध्यापन कराऊँ तो कितने पैसा मुझको देगो. पहले तो ब्राह्मण को अयाचित वृत्ति बताइए, याचित नहीं, बिना मांगे जो मिले, अध्यापन करा के याजन करा के बिना मांगे मिले, वासु अपनो गुजरान चलानो. लेकिन बिना मांगे भी एक आशा तो रह रही है ना, वो इतना मैंने काम किया तो कुछ तो मिलना चाहिए, भले मांगे नहीं. तो एक प्रकार से निर्बलता तो है ही, एक प्रकार की थोड़ी राजस वृत्ति तो विकसित हो गई है ये पौरोहित्य के काम में. और मांग के लेना वो तो और ज़्यादा खराब है वासु. तो अयाचित वृत्ति अच्छी बताई है, लेकिन सिलोंच वृत्ति सबसे श्रेष्ठ बताई है ब्राह्मण के लिए. और सिलोंच वृत्ति क्या है, उन्होंने कही विश्वरूप ने कि भाई देखो हम तो अकिंचन है और खेती हो जावे, फसल सब कट जावे, वाके बाद में अनाज की हाट पे जब सब ले जाए धन धान्य, थोड़ो गिर जावे नीचे रास्ता में, वो हम बीन के ले लें वो. और फिर जब सब हाट दुकानन में सब अनाज भरे जाए और फिर वो हमें से थोड़ा बहुत गिर जावे अनाज, वो हम ले लें. ये सिलोंच वृत्ति कही जाए आपको. तो ये वृत्ति से जब हमारी जीविका चलती हो तो हम क्यों खाली खाली यजमान वृत्ति करें. यजमान वृत्ति करेंगे तो अब हमारे तमारा कितना यजमान है कि मारा 100 यजमान है, तो मेरे 200 हैं, तो अपन को फिर यूँ मेरे कमती यजमान है, यहाँ के 200 हैं, यहाँ की मेजोरिटी ज़्यादा है. ये भाव आवे ही है ना आदमी को. तो ये भाव आवे ही है. जैसे भागवत सब तभी हो तो पूछे કેટલા લોકો ભેગા થયા, કેટલાનું હતું મંડપ, કે 5000 નું હતું. 5000 तो अरे हमारा तो 1000 જ છે, चिंता में पड़ जाए. तो ये सब जो है धीरे धीरे ब्राह्मण को तेज नष्ट करे है. यानी ये वृत्ति में फंसनो ही नहीं. विश्वरूप ने हम तो ये वृत्ति करें ही नहीं है. लेकिन अब बात ये आ गई है कि आप हमारे से बड़े हो, और बड़े हो के भी आप हमको विनती कर रहे हो, तो फिर तो हमको स्वीकारनी पड़ेगी. या सो पुरोहित वृत्ति हम ले रहे हैं. पुरोहित का मतलब क्या है? पुरोहित पहले से ही हित करना, याको नाम पुरोहित है. અત્યારે પુરોહિત का मतलब क्या कि जो पाछड़ पड़ीने मांगतो रहे, ये पुरोहित. पुरोहित का मतलब यही है ना आजकल की भाषा में. तो लेकिन पुरोहित का मतलब क्या है? जो पूरा हित पहले से ही जो कल्याण को सोचे अपनो, वाको नाम पुरोहित है. मैंने अपने यजमान को कैसे कल्याण होवे ये विचार आगे से आगे पहले से कर ले, वो पुरोहित है. ऐसे पुरोहित तो अब अपनो कल्याण पहले सोचे आदमी, यजमान को हो कि नहीं हो. पर ये तो कलयुग की बात है. लेकिन आदर्श जो ब्राह्मण ऐसे होते कि सच्चो ज्ञान देते, सच्ची बात बताते और अपने शिष्य को कल्याण कायम होवे वो बताते थे, वो आदर्श ब्राह्मण होते. तो वो वास्तव में पुरोहित होते. भाई पुरोहित वृत्ति भी करवे में सच्चे ब्राह्मण को थोड़ा संकोच होता तो. क्यों संकोच होता? कि ये उनको ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा या लिए. लेकिन विश्वरूप ने
ये पुरोहित वृत्ति भी स्वीकारी है हित करवे के लिए, देवता को हित करवे के लिए, पुरोहित हित कल्याण, देवता को कल्याण करवे के लिए ये वृत्ति स्वीकारी, क्योंकि वैष्णव है ना, विश्व रूपेष्ट देवता, विश्व रूप के इष्ट देव मुझे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जाके इष्ट देव होवे वो तो वैष्णव जन तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान करे तो बन अभिमानी ना आने रे, याको नाम वैष्णव है। आज तो वैष्णव की व्याख्या ही कुछ बदल गई है। ये वैष्णव है कि दूसरे जो दुखी हैं उनको दुख कैसे दूर होए, कैसे कल्याण होए, या बात को पहले विचार करें, याको नाम वैष्णव। और दुख दूर करने के बाद भी अपने मन में घमंड नहीं आवे कि प्रभु ने मुझको ये सेवा को अवसर दियो है कि मैं निमित्त बने उनके दुख को दूर करवे में, या भावसु अपन दुख दूर करें, ये वैष्णव है, याको नाम वैष्णवता है। तो विश्व रूपेष्ट देवता, तो ये विश्व रूप के इष्ट देवता श्री कृष्ण हैं, यानी ये वैष्णव विद्या उन्हें धारण करी है, बड़े संयमी तपस्वी और अपने यजमान कल्याण चाहने वाले ये विश्व रूप हैं। तो यदि पे हते मनुष्य, लेकिन जब देवतान के पुरोहित बने, गुरु बने, तो उनमें देवत्व भी आया है। देवतान के गुरु बने, देवत्व भी आएगा ही ना। देवतान के गुरु हैं तो वो भी देवता ही हो गए कि नहीं, फिर ये मनुष्य थे। और वो उनके मामा सब असुर थे, मामा બધા असुर था, तो असुरत्व પણ આવ્યું છે। તો વિશ્વરૂપની અંદર ત્રણેય વસ્તુ વિદ્યમાન છે, देव दानव ने मानव। तो विश्वरूप के तीन मस्तक हैं, वो कह रहे हैं, एक मस्तक सु सुरापान करते, एक मस्तक सु अन्न खाते, एक मस्तक सु अमृत पीते, ऐसे तीन मस्तक उनके हते विश्वरूप के। मुख्य में ये विश्वरूप को प्रभु की ये इच्छा थी कि ये तप ज्ञान और जगत उद्धार को जो सामर्थ्य है ये विश्वरूप में आयो, क्योंकि इनको हेरिडिटरी मिले। दक्ष की पुत्री के ये संतान है तो उनको हेरिडिटरी मिली, तो वो जो आध्यात्मिक रूप से सूक्ष्म रूप से उनके पास ये पोटेंशियलिटी सामर्थ्य विराजमान है, और वैष्णव है, वैष्णव विद्या जाने हैं। और ये जो सामर्थ्य है वो विश्वरूप के पासु भगवान को इंद्र को देना है, इंद्र पे महापुष्टि करनी है प्रभु को। अब ठाकुर जी को कौन पे कैसे पुष्टि करनी हो, क्या लीला प्रभु की है, ये अपन नहीं जान सके। अपन અમે यो ननु नचा करें, आम केम थયું, आम न थવું જોઈએ, आम थવું જોઈએ। अरे भाई पण तारी सृष्टि थोड़ी છે आ, ते बनावी जगत, ते बनावी છે, अपने जगत बनाया नहीं है। जगत जाने बनाया हुआ है, वाकू कौन पे कैसी पुष्टि करनी है वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, अपने ऊपर छोड़ना चाहिए। यहाँ वही तो दिखाना चाह रहे हैं, प्रभु अपनी कृपा से पूरी सृष्टि कैसे संचालित कर रहे हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, प्रभु कर रहे थे ना। तो हमें अपन जजमेंट देने वाले कौन है बीच में? ये पूरा छठो स्कंद को यही तो कंसेप्ट पूरा है, प्रभु कैसे अपनी कृपा से सबको नचा रहे हैं, वही तो देखने को बात है। हमें यहाँ पे अपन को जजमेंट दे कोई कुछ कह नहीं रहे है, अपन जजमेंट देवे कि विश्वरूप ने गुरु बनाया, विश्वरूप इंद्र आगे जाके विश्वरूप को वध कर देवे, कैसो अधर्म कियो गया, आओ ऐसो क्यों जातो है को अधर्म धर्म तो छोड़ दो ना। अभी यहाँ कृपा की बात चल रही है, ठाकुर जी को कृपा कैसे करनी आप विचार करो। अभी अपनो विचार करे को नहीं, अपनो कर्तव्य विचार करे को नहीं है, पहले कृपा की बात सोचो। तो ये विश्वरूप ने पुरोहित स्वीकार कियो देवतान को। तो शुक्राचार्य जी की कृपा से असुरन ने जो संपत्ति जीत ली थी देवतान के पास सु, विश्वरूप ने फिर से अपनी वैष्णव विद्या के द्वारा वो संपत्ति छीन के देवराज इंद्र को दे दी। और देवराज इंद्र ने ये वैष्णव विद्या जो नारायण कवच रूप वैष्णव विद्या है वो इनके पास पड़ी, विश्वरूप के पास। वासु पूरे सुरक्षित हो गए और असुर की सेना पर उन्हें विजय प्राप्त की। ये विश्वरूप ने बहुत बड़ो हित देवताओं कियो। वास्तव में ये पुरोहित होते हैं, देवताओं कल्याण इनने कियो है। अपनो ब्राह्मणत्व नष्ट हो बाकी परवाह किए बिना उनने अपने यजमान को हित को विचार कियो है, ऐसे विश्वरूप ये हैं। तो यहाँ ये देखो कि कैसे विश्वरूप को पिक्चर में लावे के लिए प्रभु ने इंद्र को घमंड करवायो, बृहस्पति को अनादर करवायो, बृहस्पति जी को
क्षमा मांगने को भी अवसर इंद्र को नहीं दियो गयो। ये सब बात विश्वरूप के पास वो सब विद्या इंद्र को दीवानी है या लिए, नहीं तो इंद्र को वो विद्या मिलती। विश्वरूप यदि गुरु नहीं बनते देवता के तो इंद्र को वो विद्या प्राप्त होती ही नहीं। तो मुख्य में इंद्र पे पुष्टि करनी है प्रभु को, या लिए विश्वरूप को गुरु बनवाए। तो विश्वरूप गुरु कब बनेंगे? जब बृहस्पति जी गुरु पद भी खाली करेंगे तब तो विश्वरूप आएंगे ना, कैसे आएंगे? तो बृहस्पति जी की जगह खाली कैसे करवाई? इंद्र को घमंड लाके। तो ये ऐसे चक्कर प्रभु चलावे આમ પ્રભુની લીલાનું ચક્કર કેટલું મોટું છે આપણને ખ્યાલ ના આવે, બડો ચક્કર વાળો કામ है। આપણે આમ વિચારતા જ થઈ જઈએ कि क्या हो रहा है, अचानक बैठे बैठे क्या हो गया, यूँ हो गया। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये भगवान कब क्या करने की इच्छा रखे हैं, ये अपन को जजमेंट करना बहुत मुश्किल है। वाकई बात ये 8वें अध्याय में पूर्व नारायण कवच को उपदेश दियो है। जो वैष्णव विद्या है नारायण कवच, वाकई लिए देखो नारायण कवच के लिए 2 नाम, ये तो विश्वरूप इष्ट देवता तो नाम आ गया एक 7वें अध्याय को कि भाई इष्ट देवता ठाकुर जी इष्ट देवता कौन के बने हैं? जहाँ पे ऊपर भगवान कृपा होए वही प्रभु को इष्ट देव बना सके, नहीं तो नहीं बना सके। तो अपने भी इष्ट देव प्रभु ही है, कृष्ण ही तो अपने भी इष्ट देव हैं, केवल विश्वरूप के इष्ट देव थोड़ी, अपने भी इष्ट देव भगवान है। तो अपने पे भी भगवान की कोई ना कोई कृपा तो है ही, तभी तो अपन इष्ट देव बना सके हैं। फिर यहाँ परीक्षित राजा ने उनको सुखदेव जी को नारायण कवच की जब प्रभाव उन्हें सुनियो कि देखो नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने असुरन पे विजय प्राप्त करके खुद को सुरक्षित कर लियो, तो नारायण कवच बहुत प्रभावशील लग रहे हो। तो नारायण कवच क्या है या को विस्तार से वर्णन करो को प्रश्न उनने परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को किया। सुखदेव जी ने 8वें अध्याय में पूर्ण नारायण कवच को विस्तार किया है 8वें अध्याय में। तो वाकई नाम है कवचात्मा और पालनात्मा वर्मोपचिति कारणम। कवच आत्मा, कवच क्या है? कवच रूपेण इंद्रस्य रक्षक, कवच रूप से इंद्र की रक्षा करने वाले भगवान। इंद्र की रक्षा कौन कर रहे हो है? सुरक्षित इंद्र कैसे हो गए हो? वैष्णव विद्या से। कौन सी वैष्णव विद्या? नारायण कवच। नारायण कवच का उपदेश उनने अपने गुरु के पास से सीखे हो, तो विश्वरूप के पास से, तो वह कवच सु इंद्र की रक्षा भगवान ने करी है। तो कवच रूप सु इंद्र के रक्षा का भय, तो नारायण कवच को बड़ो महात्म्य है। क्यों महात्म्य है नारायण कवच को? क्योंकि पालनात्मा, पालन करे वाले भगवान हैं। सर्वेषां पालनाय आत्मा यस्य, सबन को पालन करने के लिए आत्मा जिनकी है, अवतार जिनको है, भगवान श्री कृष्ण। मतलब नारायण कवच में ये बात बताई है कि सब प्रकार की रक्षा जो है मुख मेरी भगवान करो, ऐसे नारायण कवच में आया है। जैसे भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर विराजमान है, वो सब प्रकार से मेरी रक्षा करो, ये तो मूल श्लोक नारायण कवच को है। ओम हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम निष्ठांगिरी पद्म पतकेन्द्र पृष्ठे दरादि चर्मा सगदेशु चाप पाषाण ददानोष्ट गुणोष्ट बाहु, ये मूल श्लोक है। फिर कह रहे हैं कि जल के भीतर वरुण देव मेरी रक्षा करें, मायासु वामन जी मेरी रक्षा करें, आकाश में त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करें। देखो सब अलग अलग स्वरूपन के नाम यहाँ आ रहे हैं। वामन भगवान, त्रिविक्रम भगवान, मत्स्य भगवान जल में रक्षा करें, तो और दैत्य अट्टहास सब जगह होवे, ऐसे सब डर जावे हैं। तो दैत्य के युद्धपति के शत्रु जो भगवान नृषि हैं, वो नृषि भगवान सब जगह विकट जो स्थान है वहाँ में रक्षा करें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पालनात्मा, सर्वेषाम
पालनाय आत्मा, सबन को रक्षा करने के लिए आत्मा जिनको है, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत क्या कह रहे हैं, कृष्ण तो स्वयं अवतारी है और जितने भी 24 अवतार भय हैं वो कृष्ण के ही अंश हैं, सब अंशी भगवान खुद है। तो यहाँ जितने भी वर्णन हो रही है ना कि जल में ये भगवान, आकाश में ये भगवान, ये सब प्रभु के ही अवतार है सब। तो वही है, कह रहे हैं कि मार्ग में वराह भगवान रक्षा करें और शिखर पे परशुराम जी रक्षा करें और प्रवास में लक्ष्मण जी के बड़े भाई रामचंद्र जी प्रवास में रक्षा करें। माने एक पण जगह छूटी नहीं है, वहाँ बड़ी जगह भगवान हमारी रक्षा करें। मारण मोहन भयंकर अभिचार में प्रमाद में हमारी रक्षा करें, पीछे योग में विघ्न पड़ जाए तो भगवान मेरी रक्षा करें। दत्तात्रेय जी कर्म बंधन से कपिल देव जी रक्षा करें। सनत कुमार जो हैं वो कामदेव से रक्षा करें। हयग्रीव जो हैं वो मार्ग में चलते चलते देव मूर्ति को याद आपको नमस्कार नहीं करें, मुंह फिरा के चले जाए तो भी अपराध है, हयग्रीव भगवान रक्षा करें। फिर कह रहे हैं कि सेवा के अपराध में देवर्षि नारद जी रक्षा करें। ये अपने लिए खास इंपॉर्टेंट है कि अपन सेवा करे वाले हैं। सेवा के कौन कौन से अपराध हैं? हरिराय महाप्रभु जी ने 67 अपराध बताए हैं सेवा के। यहाँ भी ये पुराण में भी 32 प्रकार के सेवा के अपराध बताए हैं। तो मूल अपराध देखें कि एक तो भगवान के मंदिर में जाना हो तब खुले पाम जाना चाहिए, या फिर अपवित्रता को हो तो खड़ा वगैरह पहनो, पर ऐसे राजा सवारी पे चढ़ के जावे, राजा जैसे से नहीं जावे। तो आज भी આજે પણ આપણે મંદિરમાં જઈએ તો ઘણા લોકો નથી દ્વારકા યાત્રા કરતા, દ્વારકા મંદિરમાં ચાલી નહીં જાય એમ કરે છે ને। તો એ એક પ્રકારનો ભાવ છે दीनताનો, दीनता को भाव है। पीछे जैसे बड़े बड़े उत्सव हैं, पर्व हैं, जैसे 4 जयंती है, रथ यात्रा है, स्नान यात्रा है, इन उत्सव को नहीं उजावनी नहीं करनी है। ये भी एक भगवत अपराध है। इतना बड़ा उत्सव भगवान का आयो और तुम जो है वो घर बंद करके और छुट्टी मिली या पिकनिक मनाने चले गए, तो भगवत अपराध है ना ये। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सब पर्व उत्सव आवे तो खास मनाना चाहिए अपन को। तो ये पुराण में कहिए कि सेवा का अपराध है ये। फिर प्रभु के दर्शन में करें तब दंडवत प्रणाम नहीं करने, यूं ही खड़े हो जाने आके, हाँ बोलो आ भी गया है, तो ये अपराध है ये। ऐसे नहीं करना चाहिए, तुरंत दंडवत प्रणाम करने चाहिए। पीछे एक हाथ से प्रणाम करना, कई लोगों को आदत हो एक हाथ से प्रणाम कराएं, एक हाथ से प्रणाम नहीं करो जाए कभी, यूं कर ले, यूं कर, ये तरीका है ना प्रणाम। नमस्कार आदमी कैसे करे है? एक भाई तो मैंने आंख मारी ने मैंने दंडवत प्रणाम करता था। मैं कीधुं गजब करे, मैं कीधुं कि તમને આંખમાં કઈ તકલીફ છે? તો કે ના ના એ તો આપને જોયા ને એટલે આંખ શું કરવા મારો છો ભાઈ? અગર સીધે यूं ही खड़ा तो अच्छो है। अजीब अजीब प्रकार से आदमी प्रणाम करे। परिक्रमा जब करते हो अपन तो परिक्रमा ही करते रहे। प्रभु के कोई स्थल आवे, प्रभु को मंदिर रास्ता में आवे, जब बैठक जी आवे, जैसे अपन गिरिराज जी की परिक्रमा करें तब, तो अपन को वहां जाके थोड़ी देर बैठनो, स्मरण करनो, भगवत स्मरण करनो, 2 पद गाने, फिर जाने। परिक्रमा की रेस में थोड़ी लगे अपन, घोड़ा की रेस थोड़ी जगह दौड़े जाए। तो ये भी भगवत अपराध है। यात्रा से परिक्रमा नहीं हो कोई दिन। और प्रभु के सामने कैसे बैठना कि अपने पाम जो है प्रभु को दिखने नहीं चाहिए। जैसे गुरु के सामने भी यही तरह से बैठना चाहिए कि अपने पैर गुरु या प्रभु को नहीं दिखने चाहिए। और गुरु और ठाकुर जी के सामने सोना नहीं चाहिए, निद्रा अपराध से। भगवान के सामने भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं बैठे बैठे, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रभु के सामने बैठ के जोर जोर से बोल रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जोर जोर से, आवेश में आ जावे आदमी तो जोर जोर से बोल रहे, प्रभु के सामने बोल, प्रभु की भी आमान्य नहीं रखी। ने अपने ત્યાં વાર્તા આવે છે ને કે જે
શ્રીનાથજીના બગીચામાંથી ફૂલ ચોર્યા ત્યારે એ છોકરો આવ્યો, છોકરાને એ છોકરો દોડ્યો, દોડ કે वो श्रीनाथ जी के मंदिर में चलो गयो। तो कौन भगवती हते? गोपालदास, हाँ गोपालदास जी। એને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે કેમ બગીચામાંથી ફૂલ તોડ્યા, તો શ્રીજીની સમક્ષ આવીને મારવા લાગ્યા। તો ઠાકોરજી ગુસ્સે થઈ ગયા, ભાઈ કોઈ તો આદર સન્માન હોય કે નહીં, કોની સામે તમે કેવી રીતે વર્તાવ કરી રહ્યા છો, તો એ બી ખાસ ધ્યાન, ભલે ભૂલ है तो भी नहीं, प्रभु के सामने तब भी नहीं કર્યો જાય, तो इतना विवेक तो रखना चाहिए। फिर भगवान की सामने आप परस्पर वातो करवी, आ तो खास टेव होय छे घणा लोकोने कि ठाकुरजीनी सेवामां ज वधारे वातो आपणे करीए, ये भी अपराध है प्रभु को, ये नहीं करना चाहिए। निंदा स्तुति करनी दूसरे की, प्रभु के सामने अपशब्द बोलने, और शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी सूक्ष्म प्रकार रखना, आ भी एक आपने જોવામાં આવે છે કે આપણામાં શક્તિ સામર્થ્ય છે। મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા કરીએ કે यथा लब्ध द्रव्य कृष्णम पूजे, जितना आपको प्राप्त है, जितना शक्ति सामर्थ्य अनुसार प्रभु की सेवा करो, और शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी बहुत सूक्ष्म प्रकार रखना, ये भी एक प्रकार से तो कुछ बात बैठ नहीं रही है ना, ठाकुर जी को अपराधी है ये एक प्रकार को। ऐसे कई और भी अपराध हैं, लेकिन वही कह रहे हैं कि ऐसे सब अपराध तो अपन कितने करते हुए हैं, तो क्या भगवान देवर्षि नारद जी ये सब अपराध से हमारी रक्षा करो, ये भी नारायण कवच में ये सब अपराध की लिस्ट आई है। तो मूल में बहुत सारी बातें हैं, वो पूर्ववत नहीं लोगों के नारायण कवच में यही तरह से हर परिस्थिति को विचार करके और प्रभु सु रक्षा करने की मांगनी करी, याचना करी है। लेकिन ये नारायण कवच को या तरह से पाठ पुष्टि मार्गी जीव को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि महाप्रभु जी की स्पष्ट आज्ञा है कि प्रार्थना प्रभु को नहीं करनी चाहिए। ये अविवेक है एक प्रकार को कि प्रभु अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं और प्रभु मेरी रक्षा करेंगे ही, यह प्रकार को हाँ ठाकुर जी में स्थापित करना है, अविश्वास प्रभु में नहीं रखना है, ये भी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। क्योंकि पालन आत्मा है ना, प्रभु कौन है? पालन आत्मा। पालना का मतलब ये है कि सबन की जो रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए जो आत्मा है वो इन भगवान की आत्मा है। आप जहाँ जो आप ये प्रार्थना कर रहे हो, इन सब अलग अलग प्रभु के रूप की, अलग अलग अवतारण की, वो अंत में तो श्री कृष्ण के ही अवतार है ना। तो अपन को अलग अलग सब की प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? अपन जो मूल अवतारी अपने जब इष्ट देव हैं उनके अपन शरण गए हैं, अपन कह रहे हैं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं, तो सब बात तो आ गई है हमें। जब भगवान को अपन ने अपने रक्षक मान लिए तो ठाकुर जी भी तो यही भाव सामने प्रकट करेंगे ना, ये यथा प्रपद्यन्ते ताम तथे वो भजा में हम, जो जीव जा भाव से मेरे शरण आएगो वह जीव को वैसो ही स्वरूप मेरे सामने प्रकट में करो, ये भगवान कह रहे हैं। तो अपन जब प्रभु यूँ कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी मैं आपके शरण हूँ और आप ही मेरे रक्षा करने वाले हो, श्री कृष्ण शरणम मम कृष्ण गति मम, याको मतलब कि ठाकुर जी को अपन जो रक्षक मान रहे हैं तो ठाकुर जी भी सामने ये मान रहे हैं कि मुझको रक्षा करवे योग्य ये मेरे सेवक हैं जो मेरे चरण में आपे बैठे हुए हैं, तो उनके पास अपन को मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वात्मा नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत वीर्य सततम स्थे वित्यो में मति, सतत ये मंत्र को जप करते रहो, ये प्रभु मेरे रक्षक हैं, ठाकुर जी अपने आप रक्षक, ठाकुर जी पास मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा है माता पिता तो पहले से पहले संतान की क्या आवश्यकता है वो पूरी करे ही हैं। लौकिक माता पिता भी अपने संतान को क्या जरूरत है कैसे रक्षा करे ही हैं। छोटे बालक हैं जिनको अभी बुद्धि नहीं है, क्या मांगनो क्या नहीं मांगनो, उनको ये भी पूरी समझ नहीं है कि मेरी रक्षा काय वस्तु में होगी। 6 महीना बालक ने शू खबर हो, तो आखिर माँ बाप आगे रक्षा करें कि नहीं करें, वो मांगवे जावे नहीं मांगवे जावे, बाकी सब कहने पर रखें कि वो गिर नहीं जावे
बाकी आजू-बाजू या तरह से अपन आपको सुवा में कि करवट फेर तो गिर नहीं जाए, एक-एक छोटी-छोटी बात अपन ध्यान रखें कि नहीं रखे हैं। तो जब अपन ने मान लियो कि ये मेरे शरण में है, तो अपन के बिना ही रक्षा करें, तो ये तो लौकिक आदमी की ये बात है। तो भगवान तो अलौकिक स्वामी है, उनको तो कहने की जरूरत ही क्या है। महाप्रभु जी कहेंगे सर्वे सर्व सर्वात्मा जे छात्र करिष्यति, जो भगवान सर्वेश्वर है, सभी की आत्मा है, तो अपनी इच्छा सु अपने भक्तन की अवश्य रक्षा ही करेंगे। नवे भक्त प्रणश्यति, अपने भक्त को नाश कभी नहीं होने देवे हैं। यानी ये अपन को अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो देवताएं हैं बेचारे, जब गरज पड़े तब दौड़े प्रभु के पास, बाकी जब सुख समृद्धि में होवे तब प्रभु याद भी नहीं आवे, तो अपने मस्ती में रहे। तो ये थोड़ी पुष्टि जीव है कोई। जो पुष्टि जीव है, जो प्रभु आश्रित जीव है, भगवान ही साधन है, भगवान ही जाके फल है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे नारायण कवच को पाठ तुम भागवत के पाठ के अंतर्गत करो तो कर सको, वहां कोई बात नहीं है। पर स्पेशल चलाकी को नारायण कवच को ही पाठ करनो या हेतु सकाम बुद्धि सु, वो पुष्टि मार्गी जीव को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां में वो अविवेक है, मांगनी अपन कर रहे हैं, और वास्तु भी सकाम भावना भी धीरे धीरे विकसित हो गए है, यानी वो नहीं करना चाहिए। और भागवत के पाठ के अंतर्गत तो पाठ आएगा ही, सभी पाठ कर रहे हैं, मतलब ये पाठ भी आएगा, लीला है, मतलब पुष्टि लीला है। ये नारायण कवच भी एक ठाकुर जी की, यो मान के नारायण कवच का पाठ कर सको, वहां कोई समस्या नहीं है। पर पुष्टि लीला अवगान नहीं करके और अपनो स्वार्थ अवगान करवे के दृष्टि से नारायण कवच का पाठ करें तो एक खोटू है। क्योंकि पालनात्मा भगवान ही सबके आत्मा है, तो वो जो अंशी है, अवतारी है, उनके अपन शरण गए, फिर अपन को अलग अलग सबके पास यात्रा भिखारा वाड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रभु को होगा कि भाई मैं जब पूर्ण पुरुषोत्तम अवतारी या को रक्षक हूं, तो ये क्यों मेरे अंशा अवतारण के पास ऐसी मांगनी कर रहे हो है। ठाकुर जी को विचार तो आयो है ना ऐसो, यानी अपन को तो महामंत्र अष्टाक्षर मंत्र दियो है, वो आनंद सु वहां को जप करते रहना चाहिए। इंद्र है, वो तो इंद्र वगैरह सब तो ऐसे ही है, पुष्टि जीव थोड़ी है, पुष्टि भक्ति मार्गी थोड़ी है। वो लोग करें ये वैष्णव विद्या। ये एक लीला है कि ये कवच के आत्मा भी भगवान है, कवच आत्मा, क्योंकि कवच रूपसु, कवच आत्मा मतलब ये कवच के आत्मा, ये जो नारायण कवच जो है, बाकी आत्मा कौन है? ठाकुर जी खुद। अगर प्रभु ही आके आत्मा नहीं बने होते तो नारायण कवच में ये प्रभाव ही नहीं आता सबकी रक्षा कर सके। तो अपनी भी आत्मा तो भगवान ही है, सर्वात्मा। अपन तो अपने तो भगवान के शरण में गए हुए हैं और अपन तो उनके दास बने हुए हैं, तो अपनों को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसे अपने प्रभु ऐसे सामर्थ्य, हाँ प्रभु को महात्म्य ज्ञान जरूर अपन को रखना चाहिए। देखो कि प्रभु जाकी आत्मा हो वह कवच को सामर्थ्य कैसे है, नारायण कवच को भल भले वाको कुछ नहीं कर सके, कोई वाको बाल भी वहां को नहीं कर सके। जाकी आत्मा भगवान होवे, वहां में इतना प्रभाव और सामर्थ्य होवे, इतनी कृपा दृष्टि है कि वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। वहां को प्रभाव यहाँ दिखाया है कि या मैं दियो है कि जैसे जो वैष्णवी विद्या को धारण कर लेवे है, बाकू राजा, डाकू, भूत, प्रेत, पिशाच, बाघ आदि हिंसक जीव कोई भय वाको रहे ही नहीं है। ये वैष्णव विद्या को प्राप्त। अपन तो सकाम निष्काम भाव से वैष्णव विद्या धारण करी है, अपन ने नाम निवेदन मंत्र लियो है। तो अपना तो वैष्णवी बहुत बड़ी वैष्णव विद्या जो साक्षात प्रभु के मुखारविंदु महाप्रभु जी के द्वारा अपन को प्राप्त हुई विद्या है। यानी अपन तो सब तरह संपूर्ण सुरक्षित है। अपन को नारायण कवच अलग करने की जरूरत नहीं है, मर्यादा मार्गी जीव करें या तरह से। या मैं नारायण कवच को प्रभाव दिखाया कि एक कौशिकी गोत्री को जो ब्राह्मण હતો वाने यह नारायण कवच की विद्या धारण करी थी और अपनी योग धारणा सु वाने अपनो शरीर जो है वो भूमि में मरुभूमि थी वहां छोड़ दियो अपनो देह। तो जहां वहां ब्राह्मण को शरीर पड़ो तो वाके ऊपर से एक बार एक गंधर्व राज હતો चित्ररथ, वो वहां सु विमान में बैठ के निकलो। तो वो आखो शरीर वहां पड़ो तो वो ब्राह्मण को जाने नारायण कवच की विद्या धारण करी थी। वह प्रभाव के कारण क्या भयो कि वो विमान के सहित आकाश सु वो चित्ररथ पृथ्वी पे गिर पड़ो। तो सबको बड़ो आश्चर्य भयो, माने सबकी सलाह मशवरा करो। तो सब ऋषि मुनि ने कही कि ये तो नारायण कवच की विद्या का प्रभाव है। इतनो बोलो वो
वो तो देह भी छूट गयो तो वाको, तब भी इतनो प्रभाव नारायण कवच को હતો। तो यही कह रहे हैं कि फिर माने वह ब्राह्मण देवता की हड्डी को लेके और सरस नदी में प्रवाहित करी और सब स्नान करवे गए। तो इतना प्रभाव ये विद्या को है। तो अपने यहाँ तो जैसे वार्तान में आवे केवल अष्टाक्षर मंत्र सु माने मृतक पुत्र को जीवा दियो, तो ऐसी अपने यहाँ कथा आवे तो कितनी ये अष्टाक्षर मंत्र कम है क्या? ये नारायण कवच किसु जी ज्यादा अष्टाक्षर साक्षात भगवान ही है वाक्य। तो ये अष्टाक्षर मंत्र के तो इष्ट देव साक्षात भगवान ही है, मतलब अवतारण के वर्णन है। इन अवतारण के आत्मा भगवान है, तब या में इतना प्रभाव है। तो डायरेक्टली श्री कृष्ण सर्व तो भगवान को ही स्वरूप है। तो या लिए वो मृतक पुत्र को भी माने जीवा दियो। तो देखो तो कोई बात मान नहीं रहते बाकी वो एक्चुअली वो ये वाकू रस नहीं है तो कि मैं जीवाऊं, पर सब जने बहुत आग्रह करे हो कि नहीं आप तुम जीवा ही दो या को, तब उन्हें अष्टाक्षर मंत्र बोल के हाथ फेरे हो के ऊपर तो जिंदा हो गए हो। तो ये कह रहे हैं कि ये विद्या को ये प्रभाव है क्योंकि बाकी आत्मा भगवान है, कवच आत्मा। कवच आत्मा वो कवच की आत्मा भगवान है और पालनात्मा कवच रूप से ही वो सबकी रक्षा भी कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि वर्मोपचिति कारणम, वर्म मतलब कवच। वो कौन सा कवच है? नारायणात्मक, नारायण नाम को कवच। वह कवच को उपचिति मतलब विस्तार सु कहनो, उपचिति वह को कारण ठाकुर जी खुद है। मतलब नारायण नाम को जो कवच है वह को विस्तार सु कहवे में कारण भी प्रभु ही है। प्रभु ने ही सुखदेव जी के द्वारा ये विस्तार करवाया हो नारायण कवच। यहाँ विस्तार पूरा 8वें अध्याय में नारायण कवच को विस्तार है। आखों 8वां अध्याय क्या है? नारायण कवच है, 6ठे स्कंद को। तो ये प्रभु ने ही वो विस्तार कराया है। ये अपनी महिमा दिखावे के लिए, अपनी पुष्टि दिखावे के लिए कि जहाँ भगवान कृपा, प्रभु को कृपा बल जाके ऊपर होवे वाकू कोई सु डरवे की बात नहीं है, वो अभय हो जावे है। तो ये वर्मोपचिति कारणम बाकी हेतु आप क्यों बने, नारायण कवच को विस्तार आपने क्यों करवायो? अपनो कृपा बल को सामर्थ्य दिखावे के लिए कि देखो वैष्णव विद्या को कैसो प्रभाव है, विस्तार थी केवू। तो ऐसो प्रभाव दिखावे के लिए तो अपन को यासु कर्तव्य उद्देश्य क्या लेना कि नारायण कवच को पाठ करना स्पेशल सकाम भाव सु, ये कर्तव्य उद्देश्य नहीं है। या कर्तव्य उद्देश्य ये है कि भगवत कृपाबल जाके ऊपर होवे है, वाको कोई भय की जरूरत नहीं है। तो वो कृपा बल को ही प्रभाव दिखावे के लिए नारायण कवच को विस्तार यहाँ करवाया है प्रभु ने। और वो इंद्र की भी रक्षा करी है। और सब हमें कह रहे हैं कि कवच रूपेण इंद्र से रक्षक सर्वेशाम पालनाय आत्मा यस्य इति पालनात्मा, कवचात्मा पालनात्मा च। कवच रूप सु आपने इंद्र की रक्षक भय हैं, ऐसो कवच आत्मा आप हैं। और सबन को पालन के लिए भी आत्मा भगवान कृष्ण की ही है। ऐसो नारायण कवच में जितने भी रक्षा करने के लिए जितने भी स्वरूप का वर्णन है वो सब स्वरूप जो है भगवान, बाकी सबकी आत्मा भगवान कृष्ण ही है। जितने भी स्वरूप गिनाए हैं यहाँ में नारायण कवच में रक्षक तरीके, वो सब रक्षक के भी आत्मा तो ठाकुर जी हैं। तो अपन तो सीधे ठाकुर जी के शरण में गए हैं, तो अपन को इनके शरण में जाने की जरूरत क्या है? ये उपदेश अपन को, ये कर्तव्य बोध यहाँ में से लेना है। ये कर्तव्य बोध नहीं लेना कि रोज नारायण कवच के पास सकाम भाव से करना, ऐसा बोध नहीं लेना है। हाँ, पर लीला अवगान के लिए आप नारायण कवच को पाठ कर सको। तो ये 8वां अध्याय को पूरा या तरह से विवरण आयो है। या तरह से यहाँ विश्वरूप के द्वारा कह रहे हैं कि भगवान ने ये वैष्णवी विद्या इंद्र को दिवाई। मतलब विश्वरूप के पास जो भी सामर्थ्य तो वो सब सामर्थ्य प्रभु ने इंद्र को दिवा दियो। मूल में इंद्र पे कृपा करनी थी, तो घमंड भी अंत में क्यों करायो? तो कृपा हमेशा कल्याण करे। देखो
कृपा कोई को कल्याण नहीं करे। तो इंद्र पे कृपा प्रभु की है, तो घमंड करा के गुरु को अपमान करा के भी अंत में इंद्र को तो फायदा ही करवायो कि सब सामर्थ्य उनको, इंद्र को, तप को, ज्ञान को, जगत उद्धार को, सब सामर्थ्य वैष्णव विद्या द्वारा विश्व रूप सु इंद्र के पास मिल गयो। तो कृपा को ये भी एक खासियत है कि वो जीव को कल्याण ही करे, जीव को अकल्याण कभी कृपा नहीं करे। ऐसी कृपा में निष्ठा अपने को होनी चाहिए कि प्रभु की कृपाशील हम जीव हैं, प्रभु हमारा अच्छो ही करेंगे सब, या तरह को भाव हमेशा रखनो, तो अपना वास्तव में अपनो आश्रय दृढ़ हो सके। तो ये ऐसे 8 अध्याय अपने यहाँ पूरे भय, 9वां अध्याय अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, विश्व पर श्रेष्ठ दिशु। तो आज बहुत सारे नाम अपने हो गए, क्योंकि आज छोटी छोटी वो कथाएं थी, ज्यादा विस्तार की जरूरत भी नहीं थी। फिर भी जो कठिनता है वो पूछ सको, अभी पूछ सको, बाद में पूछ लो, जब भी पूछना है, जो भी कठिनता लगी हो तो। हाँ, ये मारे बतावવાનું છે હજી, એ રહી ગયું છે બતાવવાનું, નેક્સ્ટ ટાઈમ બતાવીશું, આજે ટાઈમ નથી રહ્યો, નેક્સ્ટ ટાઈમ એ લઈ લઈશું। હા, એ ઇનકમ્પ્લીટ છે એટલું મારો પોર્શન। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेद, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण